बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 के पहले 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इम्प्लिसिट फंक्शन वाली टाइप आ गई है। इसके अंदर एक्स और वाई दोनों मिक्स होंगे। तो जिस तरह हम इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट किया करते थे, वैसे ही इन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। आइए पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग, अब देखिए 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मुझे कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। d ओवर डी एक्स एफ इंटू जी विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी जी ओवर डी एक्स प्लस g इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। इस फार्मूले को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स कॉस ऑफ वाई। तो आइए इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर दिस इज f एंड दिस इज g। तो यूज दिस फार्मूला। पहले x एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएट कौन सी चीज होगी? cos y, फिर cos y एज इट इज, कौन डिफरेंशिएट होगा? x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x, तो y है माइनस साइन ऑफ y आएगा। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, dy by dx. You must remember that derivative of cos y is equal to minus sin of y. लिख दूं यहां पे, using d over dx cos of x is equal to minus sin x. तो ये वाला फार्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब ये cos of y as it is, x को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर 1 आ गया क्योंकि dx ओवर dx 1। अब आप ऐसा करें कि जिनके अंदर dy बाई dx आता है उनको एक तरफ कर लें, dy बाई dx, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x इंटू साइन ऑफ y dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ y. Now you can see that dy by dx common from these two functions, from these two terms. So after taking common, what you will have? 1 plus x into sine of y. dy by dx has been taken common, is equal to cos of y. Now I want to find dy by dx. Therefore, in order to find dy by dx, I have to divide both sides by 1 plus x sine of y. Divide by 1 plus x sine of y. And remember, that should not be equal to 0. You will get dy by dx is equal to cos of y divided by 1 plus x into sine of y. This is your answer. That complete the solution of question number 3 part 1. आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, इसको हमने निकालना है dy बाई dx, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dx ओवर dx, d over dx into y sine of y. Now you can see that these two terms are multiplying with each other. Therefore
I have to use product rule over here. And what is that? D over dx f into g will be equal to f into dg over dx plus g into df over dx. Okay? Now this is your f and this is g. So by using this formula you will have y into d over dx sine of y plus, now in place of g you will write sine of y, and what will be differentiated? We shall differentiate now y with respect to x. Now what is the derivative of sine of y? That is equal to cos of y. Remember, d over dx sine x is equal to cos x, and the angle of the derivative is dx over dx. I am now just going to use this one on this function. You will have y into derivative of the sine y is cos of y. When you will differentiate the angle, you will get dy by dx sine of y into dy by dx. Now in the very next step, what you have to do, you have to take common dy by dx from these two terms, and you will get, remember, the derivative of x with respect to x is 1 is equal to y cos of y plus sine y. Sine y, what is common? dy by dx. Now I want to find dy by dx, therefore I have to divide both sides with this term. Divide by y cos of y plus sine of y. What you will get? Dy by dx is equal to 1 divided by y cos of y plus sine of y, and this is your answer. Therefore question number 3 is over. आइए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये एंगल है सारा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा d ओवर डी एक्स. सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखिएगा. कॉस ऑफ, ये सारा एंगल है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x. तो कॉस x, तो कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, यूजिंग d ओवर डी एक्स कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x. उसके बाद रिमेंबर कि हमने एंगल को भी डिफरेंशिएट करना होता है, और इस केस में तो वैसे 1 आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर केस में 1 आए. अब देखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऑफ, ये पूरे का पूरा एंगल एज इट इज आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x. अब आगे फिर क्या करेंगे? आगे हमने एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना है. एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई. अब देखें, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. तो अब इसने डिफरेंशिएट होना है इतने पोर्शन में ना, ठीक है. तो हम अंडर रूट को लिख देते हैं पावर 1/2.
और फिर लगाएंगे इसके ऊपर पावर रूल। ये साइन ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 प्लस 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल की पावर 1/2 आ गई। अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला यूज होगा? पावर रूल। पावर रूल क्या था? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे। पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। अब सेम काइंड ऑफ फार्मूला विल बी अप्लाई ओवर हेयर। ये आ गया माइनस साइन ऑफ, ये इसका एंगल आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। वाह! अब पावर के बगैर जब डिफरेंशिएट करोगे तो अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा। सो देखा आपने, पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा, फिर पावर रूल लगा, अब पावर रूल के बाद प्रोडक्ट रूल लगेगा। दैट्स अ रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी वैरायटी इसके अंदर आ जाती है। सो आइए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स is equal to dy by dx is equal to माइनस साइन, ये तो एज इट इज ही आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, आगे चले जरा। ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल की पावर कितनी हो गई? -1/2। और आगे हम क्या करने जा रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग डी ओवर डी एक्स एफ ओवर जी। किसके बराबर होता था? जी डी एफ ओवर डी एक्स माइनस एफ डी जी ओवर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। राइट राइट। अब हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस 2x एज इट इज, डिफरेंशिएट कौन होगा? डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स, फिर उसके बाद माइनस, आगे जगह नहीं है तो यहां पे लिखूंगा माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज, डी ओवर डी एक्स डिवाइडेड और डिफरेंशिएट होगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई, ये आ गया जी आपका 1 प्लस 2x का स्क्वायर, g का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर नहीं आएगा, g का स्क्वायर आएगा। ओकेज ओकेज। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लंबी है, मेरा ख्याल है कि यहां से इसको यूज कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ब्रैकेट के अंदर शुरू होता है जी, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2x की पावर -1/2। इसका काम तमाम
और आगे इसकी बारी आती है 1 + 2x, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0, x को करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 0 + 1 माइनस 1 + x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का क्या आएगा 2, डिवाइडेड बाई 1 + 2x का स्क्वायर। ये भी 1 + 2x, ये भी 1 + 2x, तो dy/dx किसके बराबर आ गया, माइनस साइन ऑफ 1 + x 1 + 2x। अब आगे सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, डिफरेंशिएशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये आ गया 1 + x की पावर -1/2, ऊपर आ गया 1 + 2x माइनस 2 - 2x ओवर ये वाला 2 इंटू ये -1/2 और 2 मिलके कितने बन जाएंगे, 2 - 1/2। अगले स्टेप में क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 1 + x ओवर 1 + 2x। ये 2x से खत्म, फिनिश, खल्लास। 1 में से -2 गए, बाकी रह गए -1 ओवर ये वाला 2 इंटू 1 + 2x की पावर 2 × 2 = 4, 4 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 3/2। ये भी डिनोमिनेटर में आगे क्या बनेगी, पॉजिटिव। ठीक 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 ठीक। अब आप ऐसा करें कि ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, 1 ओवर 2 √1 + x 1 + 2x की पावर 3/2 इंटू साइन ऑफ 1 + x ओवर 1 + 2x, and this is your answer। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, साइन कॉस की जगह पे साइन आ चुका है और पहले क्वेश्चन में ये टर्म ऊपर थी और ये नीचे, तो बिल्कुल वैसा ही तरीकाकार इसका। मैं सपोज करूंगा कि ये y के इक्वल है और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन ऑफ √1 + 2x ओवर 1 + x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यूजिंग d/dx साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे साइन का डेरिवेटिव फिर किसके बराबर आएगा, कॉस x के बराबर। ये सारी रकम x का काम कर रही है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 1 + 2x ओवर 1 + x। उसके बाद फिर एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमने एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट किया। इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ √1 + 2x ओवर 1 + x। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो इसको मैं पावर 1/2 में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं फार्मूला यूज करूंगा यूजिंग पावर रूल, d/dx ax
प्लस b की पावर n विल बी इक्वल टू, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। एंड दिस फार्मूला आई एम गोइंग टू यूज हियर इन द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट यू विल गेट, dy by dx is equal to cos of, एंगल की जगह पे आ गया 1 + 2x ओवर 1 + x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, 1 + 2x ओवर 1 + x की पावर 1/2 -1, और फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। Now this is further equal to dy by dx is equal to cos of 1 + 2x over 1 + x। इसको लिखा जा सकता है 1 + 2x की पावर -1/2। 1/2 में से -1 निकालेंगे तो -1/2 ओवर डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 1 + x की पावर -1/2। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर f/g क्वोशिएंट रूल जो है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, यूजिंग d/dx f/g। ये वाला फार्मूला जो है ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा, पहले 1 + x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर -1 + 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव, d/dx इंटू 1 + x डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर मीन 1 + x का स्क्वायर। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos of 1 + 2x over 1 + x (1 + 2x की पावर -1/2 एज इट इज ओवर 2 इंटू, अब ये देखें ये 1 + x की पावर -1/2 है और ये -1 है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। ये आ जाएगा 1 + x, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, माइनस 1 + 2x, 1 का 0, x का 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 इंटू 1 + x की पावर ये वाला 2 और ये -1/2, आपस में बेसिस एक जैसी हो, पावरें ऐड हो जाती हैं। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, dy by dx is equal to ये तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, 1 + 2x ओवर 1 + x। लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। ये देखें ये क्या है, 1 + x और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा 2 + 2x, ये +1 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, -1 - 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो पावर नेगेटिव है ऊपर, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 2x की पावर +1/2
2 2 ज़ार 4, 4 में से 1 निकाला 3/2, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां पे देखें ये 2x जो है खत्म, फिनिश, खल्लास। 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1। तो इस वाली रकम को पहले लिख लेते हैं 1/2 इंटू ये पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। 1 आ गया, 2 आ गया, एवरीथिंग इज कंप्लीट। अब ये कॉस की वैल्यू अभी लिखनी है हमने, कॉस ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, एंड दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।